Hello guys, good evening, and I welcome you back in this strategic session. And guys, today I'm going to talk about one of the most important thing. Again, from the like this is the entire approach which I'm going to share with you, like how the toppers are, preparing and how they complete the syllabus, how they include the current affairs section in the daily routine, how when they start answer writing, what is the source for the answer writing. So like within 10 minutes I'm going to tell you each and everything, guys. So please watch this video completely. Do not try to skip it, because each and everything which I'm going to discuss in these 10 minutes is going to change the way you have been, reading, or the way you have been preparing for the UPSC. Because in this video, like I said, I'll be talking about each and every step, how you should be, preparing for the GS part, how you should be preparing for the current affair, how you should be making the notes, what time, is the right time to join any test series, what is the right time to start with the prelims. So basically so many things, like essays are there, optional are there, right? So there are so many confusion I know the students have when they, especially during these phase after the prelims is over, right? So please watch this video completely, because guys, this is strategy. The strategy which I'm going to tell you is not something which is my only my personal experience, but it is the experience I have gathered after talking with so many toppers and the students who are who have given the mains even in the first attempt itself. So I know what kind of a strategy is going to work. This is like you can say the strategy like you all can follow, because from very basic to advanced level, I'll be telling you how you should be approaching towards the various section of the syllabus. Okay, guys, so let me start with this. Okay, guys, so I think the very first thing, first I'll be dividing the my approach in two sections. Okay, like in two ways. The very first thing which I would like to say, that the two approaches. The first thing is the basic thing, the basic reading of your GS syllabus, and the second is basically the advanced. So the first thing is the basic, and second is advanced. Okay, and advanced means it is a core part of your syllabus, or a core part of your preparation. Okay, for GS as well as for essay and for your optional as well. Okay, so basically first how you should be doing it. So very first thing what you have to do is, suppose you, even if you are a beginner or even if you are a veteran, okay, first, the very first thing what you should be doing, first try to complete any, say I'm going to pick up one subject. Okay, suppose we are going to pick up the polity. Okay, so in the first step, like in maybe 10 days or maybe 12 days or maybe for a few people 15 days, just do a basic reading. Basic reading means from like NCRTs you can include in this. Okay, and your conventional sources, conventional book like Lakshmikant. Okay, like Lakshmikant. Okay, so this is a basic reading. At this point of time, guys, you don't have to prepare no notes. Okay, koi notes is time pe nahi banane hain. I will tell you at what point of time you should start preparing the notes, guys. Do not get emotional when it comes to the notes. Okay, so this is, suppose this is the stage, this is the first step. In the second step, after reading the basic reading of these NCRTs and conventional book, you can attempt mock test. Okay, mock test आप या तो लास्ट में भी दे सकते हो, या आप सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट भी दे सकते हो फॉर प्रीलिम्स, लाइक PYQ, सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं. तो आप एक बार या फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, या सेक्शनल वाइज भी दे सकते हो. ठीक है, सेक्शनल वाइज इज, आई थिंक इट इज, दिस इज मोर बेनिफिशियल. सेकंड थिंग इज, गाइस, तो सपोज आपका एक सब्जेक्ट पॉलिटी खत्म हो गया इन 10 to 15 days. आफ्टर दैट, व्हाट इफ सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड सब्जेक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, इन मॉडर्न हिस्ट्री अगेन यू हैव टू फॉलो दिस बेसिक स्टेप. ठीक है, बेसिक स्टेप आपने स्टार्ट किया यहाँ से, जो आपने बेसिक बुक पढ़ ली, जैसे एनसीईआरटी पढ़ ली आपने, ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ ली,
इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक चीज और इंक्लूड करनी है, द एडवांस पोर्शन, ठीक है, द एडवांस स्टेज, और यू कैन से द कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट 1, ठीक है। ये इस जो बेसिक रीडिंग आपकी सब्जेक्ट की होगी उसके साथ ये एडवांस स्टेज स्टार्ट हो जानी चाहिए ऑफ पॉलिटी, ठीक है। अब पॉलिटी की जो एडवांस स्टेज है वो कैसे करनी है गाइस, इसको करने का द ओनली बेस्ट वे इज, आई एम टेलिंग यू गाइस, देयर इज नो सिंगल सोर्स, नो सिंगल बुक व्हिच आर गोइंग टू कवर द एंटायर GS subject from any, you know, like from the mains perspective. Okay, good understanding के लिए there has to be something which you have, you know, which you have to refer and you have to trust, and that is nothing but the previous year's question. Previous year's questions किसके, mains के, ठीक है। तो मैं जैसे बार बार बोल चुका हूं कि लास्ट आप 20 years, 30 years, 40 years के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख सकते हो। इनको खाली गाइस एनालाइज करना है, ठीक है, एनालाइज करके थीम्स निकालनी है इनमें से आपको, ठीक है। थीम्स का मतलब जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल ले रखा है, जैसे कि मैंने सेक्युलरिज्म का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म से कितनी, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो 6-7 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसमें आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि सेक्युलरिज्म में क्या क्या चीजें हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म के बारे में क्या लिखा है, इवोल्यूशन क्या है, वेस्टर्न कंसेप्ट क्या है सेक्युलरिज्म का, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसेप्ट क्या है सेक्युलरिज्म का इन इंडिया। तो ये सारी थीम्स जो है खाली आपको इनमें इन क्वेश्चंस पेपर से निकालनी है, ठीक है। जब आपके पास थीम्स हो जाएंगी गाइस, नाउ दिस इज द टाइम कम व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स, ठीक है। इन चीज का आप जो ये थीम्स के ऊपर रिसर्च करोगे, इनके ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं, बिकॉज ये जो थीम्स एक बार प्रिपेयर हो गई गाइस, इससे ज्यादा आपको चीजें नहीं पढ़नी है, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट and this is the time when you have to start making the notes. Now I hope you understand when I said how you have to divide the syllabus into basic reading and the core reading. Okay, so जब आप इतना टारगेट रखना कि अगर आप 15 डेज में यहाँ पे अगर मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हो बेसिक रीडिंग, तो 15 दिन में आपका ये कोर जो होना चाहिए पॉलिटी का, ये भी खत्म हो जाना चाहिए। थर्ड स्टेज में क्या करोगे आप, सेम चीज रिपीट कर दोगे। कोई थर्ड सब्जेक्ट आपने उठा लिया, सपोज इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसकी बेसिक रीडिंग आपको करनी है। इसके साथ आपको क्या करना है, कोर पार्ट जो है किसका करना है, मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का। अब कोर पार्ट कैसे करना है, सिमिलर वे, एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अब यहां से गाइस जो आपको थीम्स मिलेगी अगेन, उसके ऊपर फिर से आपको नोट्स बनाने हैं, बिकॉज जो ये थीम्स है गाइस, ये थीम्स आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से निकाल रहे हो, एंड इन थीम्स के ऊपर आपको बहुत सारे वैल्यू एडिशन पॉइंट मिलेंगे। राइट, जनरल आंसर तो कोई भी लिख देगा, राइट, इतनी 1-2 रीडिंग के बाद, लेकिन वैल्यू एडिशन के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो, चाहे ऑफलाइन बनाओ चाहे ऑनलाइन बनाओ। आई रेकमेंड कि प्रिपेयर इट ऑनलाइन, क्योंकि कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना हो, कुछ उसमें आप नई न्यूज ऐड करना हो, फैक्ट ऐड करना हो, देन यू विल गेट अ चांस, like you can easily do it, even you can search it when it is available online, right? So this is for the GS subject guys. I hope you understand what like this entire concept is. It is quite easy. Okay, so guys, इसमें क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, एंड आपको सबसे बड़ी चीज कि इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, कि हाँ आपने कोर सब्जेक्ट खत्म, बेसिक रीडिंग खत्म कर दी है, नाउ यू आर इन द कोर एडवांस स्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब इसके बाद after doing this PYQs, you can attempt mains test of the polity. Okay guys, mains test of the polity. इसके पहले अगर आप सोचते हो कि मेंस टेस्ट लगा के कोई फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। ये मैं कल परसों जितने वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। दिस शुड बी द अप्रोच यू गाइस शुड फॉलो, ठीक है। नाउ अब इसमें आपको समझ में आ गया कैसे। इसमें देखो गाइस, बेसिक रीडिंग भी हो रही है, ठीक है, हमारी रीडिंग भी हो रही है, हमारा रिवीजन भी हो रहा है पिछले सब्जेक्ट का, राइट। रिवीजन के साथ साथ हमारे क्या है, नोट्स भी बन रहे हैं। नोट्स भी किसके बन रहे हैं, ओनली वैल्यू एडिशन के, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अप्रोच। ओके, नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज बेसिकली हाउ
पीपल आस्क मी सर कि जो आंसर राइटिंग है वो हम क्या डायरेक्ट इसी स्टेज में स्टार्ट करें, बट लेट मी टेल यू गाइस, आंसर राइटिंग खाली आप एक चीज ध्यान में रखना कि आंसर राइटिंग खाली जब क्वेश्चन आपके पास हो, जरूरी नहीं है कि आप तभी आंसर राइटिंग करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रीडिंग एनी करंट अफेयर either from the newspaper or either from the magazine, still you can practice the answer writing, right? आंसर राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं गाइस, पहले अपने आप से पूछो, हम क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करते हैं, राइट? क्वेश्चन की डिमांड्स क्या होती है? जो एडिटोरियल आप पढ़ते हो, जो एनालिसिस पढ़ते हो किसी टॉपिक की, उसी की थीम्स तो होती हैं, कुछ थीम्स उठा के उनके ऊपर क्वेश्चन बना दिया जाता है, राइट? सो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट यू कैन डू. आंसर राइटिंग जो आई एम सॉरी गाइस, हाँ, जो आंसर राइटिंग है, इवन यू कैन डू इट फ्रॉम डे वन. फ्रॉम डे वन यू कैन स्टार्ट. द रीजन इज लॉट ऑफ लाइक पीपल आस्क मी हैव कंप्लेन कि सर नहीं, पहले दिन से तो नहीं होती है बिकॉज पता नहीं होता है. लेकिन गाइस, जब आप न्यूज पढ़ते हो, न्यूज की एनालिसिस पढ़ते हो, तो एटलीस्ट आपको इस टॉपिक के बारे में तो पता होता है ना. इस एनालिसिस को आप न्यूज़पेपर से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, इसी को डिवाइड कर दो कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या, अगर क्वेश्चन आ जाए क्या लिखोगे, देन उसके बाद इसमें फैक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, डेटा क्या होगा, देन उसके बाद अगर कोई स्कीम है, कुछ है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, या कोई एक्ट है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके चैलेंजेस क्या क्या होंगे, या क्रिटिसिज्म क्या क्या होंगे, राइट? सो ये दिस इज, एंड देन उसका वे फॉरवर्ड क्या होगा. So this is how, अगर आप यही चीज अपने कॉपी में लिख रहे हो, don't you think this is also like a form of answer writing? Form of answer writing? Yes, it is, guys. तो आप एटलीस्ट न्यूज़पेपर से पढ़ के तो ये चीज कर ही सकते हो ना, या आप मैगजीन पढ़ रहे हो, उसमें से एक आर्टिकल उठा लो. सो दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप डे वन से स्टार्ट कर दो इस चीज को. जो भी पढ़ो, मेक श्योर यू, प्रीलिम्स के फैक्ट्स नहीं बोल रहा हूँ, कोई ऐसा टॉपिक उठाओ जिनके ऊपर एनालिसिस इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर आप इस स्ट्रक्चर में एक रफ नोट्स क्रिएट कर सकते हो, और यू कैन से द समरी. उसके बाद उसको फाड़ के फेंक दो पेज को, देयर इज नो नीड टू कीप इट. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट और बिगिन विद द आंसर राइटिंग. गाइस, आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये सोचोगे कि मैं टेस्ट सीरीज में जाके पहला आंसर लिखूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. Like yesterday video, in yesterday video I have told you 99% dropout rate होता है, और लोग यही नहीं समझ पाते कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, राइट? तो ये सारी चीजें गाइस मैंने बहुत ही शॉर्ट मतलब फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दी है. चीज ये है. और गाइस, एक चीज और मैं बोलूंगा कि न्यूज़पेपर के लिए काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि न्यूज़पेपर हम कैसे पढ़ें, या किस टाइप की न्यूज इंपॉर्टेंट है. गाइस, सो प्लीज लेट मी नो इफ यू रियली वांट मी टू prepare a video on that. There is a very simple way to read the newspaper and to identify what all topics are important. But guys, मैंने एक चीज जो नोटिस की है, हम जो मैगजीन में देखते हैं समरी या एनालिसिस, उसका कोई बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो रैंडमली पिकअप कर लिए गए होते हैं, या उनके ऊपर अननेसेसरीली एनालिसिस दे दी गई होती है. ठीक है? तो क्यों? जैसे कि सपोज सम टाइम इवन अ न्यूज कैन बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है? फ्रॉम मेन्स परस्पेक्टिव, एक सिंगल न्यूज में बता रहा हूं. और इवन सम टाइम एडिटोरियल एनालिसिस जो है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है. तो ये चीज आपको समझना है. जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज देयर इज कोई एक न्यूज है जो बहुत ही एक छोटे से पैराग्राफ में दी हुई है, एक छोटे से पैराग्राफ में दिया है कि सपोज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोई प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का, रिजेक्ट कर दिया हो. तो यूजुअली व्हाट, मैगजीन में आप इस टाइप की न्यूज को नहीं मिलेगी. आपको इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है, यू वोंट गेट इन द करंट अफेयर मैगजीन. बट गाइस, दो इट इज अ वेरी स्मॉल न्यूज, शॉर्ट न्यूज, बट मेंस क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस. अगर आपको भरोसा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जाके आप जुडिशरी का जो पॉलिटी का चैप्टर है उसमें देख लेना कि ट्रिब्यूनल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एनवायरमेंट में एनजीटी के एफिशिएंसी और इसके सिग्निफिकेंस या इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं. और एडिटोरियल एनालिसिस, सपोज कि इन्फ्लेशन इंडिया इस समय जो ग्लोबल में लाइक एट द वर्ल्ड लेवल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके ऊपर बहुत सारा डेटा दिया हुआ है दुनिया भर का कि फूड में, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में,
देन सर्विसेज में हर जगह जो है इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है हमको, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हेल्थ सेक्टर में। गाइस इसके ऊपर क्या आपको लगता है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज द रीजन, लाइक कि इस एनालिसिस के ऊपर? हाँ, वो और डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता जैसे मैंने आपका व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड द राइजिंग इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप मैगजीन में जाओगे, देखोगे इसके ऊपर 2 पेज की एनालिसिस दे दी होगी और लोग उसके ऊपर बहुत सारा डेटा रट लेंगे, ये कर लेंगे, बट उसका यूज कहीं नहीं होने वाला है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो। आपको खुद से पता होना चाहिए कि कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, किसमें एनालिसिस रिक्वायर्ड है, किसमें नहीं है। अगर आपको खुद ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, ये गाइस ये आपकी प्रॉब्लम है। यू हैव टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम टेलिंग यू, अगर जब तक आप ये टेक्निक नहीं सीखोगे, आप कभी भी करंट अफेयर में यू वोंट गेन द कॉन्फिडेंस। हमेशा आपका सिचुएशन डाउटफुल रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। और जीएस में भी जो मैंने अप्रोच बताई गाइस, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं कर रहे हो 20-30 साल के, आपको थीम्स नहीं मिलेगी। थीम्स नहीं मिलेगी तो आपका वैल्यू एडिशन नहीं होगा, और थीम्स नहीं मिलेगी तो आपका नोट्स नहीं बनेंगे। ओके गाइस, सो ये सारी चीजें जो हैं, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स व्हिच आई हैव सजेस्टेड यू। ओके, तो आई जस्ट मेक अ समरी ऑफ इट कि क्या क्या चीजें जो मैंने बोली हैं कि जो एडवांस स्टेज है सब्जेक्ट की, ठीक है, उसको किसके करना है, उससे उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थीम वाइज करना है, ठीक है। इसी से आपकी, यहीं से आपकी नोट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, यहीं से आपका वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है। और जो करंट अफेयर है, आइदर यू डू इट फ्रॉम द न्यूज़पेपर और आइदर यू डू इट फ्रॉम द करंट अफेयर मैगजीन। आंसर राइटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जानी चाहिए गाइस, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 2 चीज ध्यान में रखना गाइस। और ऐसे के लिए अगर आपको कुछ करना है तो आप यू कैन, जैसे मैंने पहले बोला है कि योजना या कुरुक्षेत्रा जो मैगजीन आती है, उसको उसकी समरी खुद बना लो यार, क्या प्रॉब्लम है? समरी क्यों पढ़ना है आपको? आप उसकी कवर स्टोरी जो होती है वो पढ़ के उसकी समरी खुद लिख लो, कैसे भी लिखो, इट डजंट मैटर, स्टार्ट तो करो। तो ऐसे के लिए ये कर सकते हो गाइस। और दिस इज एवरीथिंग गाइस व्हिच आई एम टेलिंग यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑप्शनल जो है, आप ऑप्शनल ये मत कोशिश करना, डू नॉट रश टू कंप्लीट द ऑप्शनल। इसको क्या है, इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है गाइस, तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आप 2 महीने में इसको कंप्लीट करो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023, आप इसको 5 महीने में, आप वीकली या इसको डेली मतलब ऑल्टरनेट डेज आप 2 आवर्स दो, ठीक है, या वीकेंड्स में बैठ के आप 4-4 घंटे दे दो, आप इसको 8 घंटे दे दो एक वीक में। सो दिस इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट द ऑप्शनल इन 4-5 months or maybe 6 months. What is harm in that, right? So this is everything guys. And yes, if any one of you are interested in knowing about these 2 things, please get back to us, by filling the form in the which will be given in the description box. Because guys, we have launched this kind of program, like I said, कि जिसमें हम लोग themes provide करेंगे PYQs की of last 40 years, ठीक है। और आंसर राइटिंग जो होगी वो वीकली बेसिस पे 10 टॉपिक्स की होगी, ठीक है। तो आप 10 टॉपिक अगर आप वीकली कर रहे हो, 600+ टॉपिक्स वी आर टारगेटिंग बाय नेक्स्ट मेंस, ठीक है। तो यहीं से गाइस आप सोच लो कि यहाँ पे इन 2 चीजों की वजह से आपकी सारी चीजें प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। थीम्स मिल जाएंगी, आपकी नोट्स मेकिंग हो जाएगी, आपका रिविजन हो जाएगा यहीं से, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। उसके साथ साथ जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है, वो समाचार वाणी प्लस जो है, इसके थ्रू वीकली आंसर राइटिंग होगी करंट अफेयर की, जिसमें डीप एनालिसिस एंड डिस्कशन भी होगा। एवरी संडे हो रहा है, इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट। Okay, so if you have any queries guys, please do let me know. I will be sharing the best strategies with you, because just by following these strategies, there are so many student aspirants who have wrote the first mains in the first attempt itself, guys, because their vision was very clear कि हाँ उनको ये चीज करनी है। This is how they have to divide the syllabus into basic and core phase, and from day one they are also practicing answer writing through the current affair approach. So हर चीज उनकी holistically cover हो जाती है। So guys, thank you so much again. I'm going to end this session, and कुछ भी query है आपकी, please fill the form which will be given in the YouTube description. And if you really want to talk to me on any particular topic, please let me know.
whatever आपके पास कोई पर्सनल प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, इफ लाइक एनी चैलेंजेस, इफ यू आर स्टक इन अ साइकिल, यू नो 2-3 साल से प्रीलिम्स से निकल रहा है, मेंस से निकल रहा है, please fill the form. Personally, I am going to talk with you guys. Okay, we have like we are the core mentor, we have other mentors as well who are dealing with the students one to one. Okay, so please I mean मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप बाहर आओगे और अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, so that you know you, हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि हम आपको जब एडवाइस देंगे, सजेस्ट करेंगे कोई सही चीज. Okay guys, so thank you so much again and good night, take care.